Here is the second part of the video, which includes the question which were left in the last video. The question is, discuss why converting a base class pointer to derived class pointer is considered dangerous by the compiler. Answer: we can make a pointer point to any memory location as we want using explicit typecasting. This means we can let a pointer point to its base object also. So, in terms of class method usage, when we declare a pointer, let us suppose class X, we usually expect that we can call all the exposed method of X through the pointer, as the compiler have knowledge about X and will arrange the code to do so. Now, we already know that derived class object is also base object, so base object pointer can call the base methods as the memory layout of the base object part is known the compiler. If we let the derived object pointer point to its base object is surely not a derived object, so we can't call the derived methods with this pointer. So normally we should not point a derived object pointer to its base class. To understand this question, you must have clear concept on some of the basic topics such as pointer, base class and derived class, and if you have any confusion over it, make sure to comment in the comment section so that I can make another video for you. The next question is, what is a virtual function? Why we need virtual function? A virtual function is a member function which is declared within a base class and is redefined by a derived class. When you refer to a derived class object using a pointer or a reference to the base class, you can call a virtual function for that object and execute the derived class version of the function. Virtual function should be accessed using pointer or reference of base class type to achieve runtime polymorphism. The prototype of virtual function should be the same in the base as well as derived class. They are always defined in the base class and overridden in a derived class. It is not mandatory for the derived class to override. In that case, the base class version of the function is used. A class may have virtual destructor, but it cannot have a virtual constructor. Now, the need of virtual function is, virtual function ensures that the correct function is called for an object regardless of the type of reference used for function call. They are mainly used to achieve runtime polymorphism. What are the different forms of inheritance? Give an example for each. The different forms of inheritance are single inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance and hybrid inheritance. So we will see it here one by one. The first one is single inheritance, in which there is one base class and one derived class, and here derived class inherit the properties of base class. So let us understand it with an example. Here first there is a class vehicle containing one default constructor inside it, and in the default constructor one output statement is there, that is this is a vehicle, and there is another class which is a class car, and here you can see it clearly that it inherited the property of the class vehicle, and then it has nothing inside the its braces, and in the main function we created the object of class car, and you can see here after running the program or compiling the program, we can see the output is this is a vehicle. Why? Because as soon as when we created the object of class car, it inherited the properties of class vehicle, and then the default constructor called automatically, and hence the output is this is a vehicle. The next inheritance is multiple inheritance, in which there are two base classes B1 and B2. B1
and here it is B2, and there is one derived class, and one derived class inherits the property of both the base classes. Derived class inherit the property of both the base classes, and let us understand it with an example. Here in the class A there is one default constructor which is named A, and there, inside that there is one output statement which is A's constructor called, and in the class B there is another default constructor B, and inside that there is one output statement C out, B's constructor called, and there is another class C which is derived class, and it inherits the property of class A and class B, which can be seen here clearly, and inside the class C there is one another constructor in which there is one output statement, that is C's constructor called, and in the another main function we just created the object of class C, and here you can easily see that if you run the program, the output will be first class A's constructor called, then B's constructor called, and in the third line C's constructor called. This happened because as soon as we created the object of class C, here in the class C, class A and class B are inherited, so accordingly the constructor of both the classes will get execute and print the output statement accordingly. If you have confusion over it or don't understand in English, make sure to comment in the comment section. I will make another video on it in Hindi or as you desire. The next type of inheritance is hierarchical inheritance, and in the case of hierarchical inheritance यहाँ पर एक बेस क्लास होता है एंड इसका दो डिराइव क्लास होता है। इसका मतलब कि एक बेस क्लास होगा और दो ऐसा क्लास होगा जो इस बेस क्लास का प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा होगा। तो चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक क्लास व्हीकल है, व्हीकल, एंड जिसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक आउटपुट स्टेटमेंट है दिस इज़ अ व्हीकल, एंड एक दूसरा क्लास है क्लास कार, जिसका एक जो क्लास व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है और उस क्लास के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है या फिर कंस्ट्रक्टर नहीं है। उसके बाद एक अलग क्लास है क्लास बस, जो क्लास व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है और इसके अंदर भी कोई फंक्शन या कंस्ट्रक्टर नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक क्लास व्हीकल है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दूसरा क्लास कार है जो क्लास व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है, एंड यहाँ पे थर्ड क्लास है क्लास बस जो क्लास वो भी क्लास व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि दो डिराइव क्लास है और एक बेस क्लास है। और मेन फंक्शन में अगर हम कार obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं एंड बस obj2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, तो इसका आउटपुट होगा दिस इज़ अ व्हीकल, दो बार लिखा हुआ इसका आउटपुट आएगा दिस इज़ अ व्हीकल दो बार। ऐसा क्यों हुआ चलो देखते हैं। क्योंकि जब हम मेन फंक्शन में क्लास कार obj1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए तो कार नाम का क्लास में हमने व्हीकल क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, एंड इस वजह से व्हीकल क्लास का फंक्शन कॉल होगा जिसमें कंस्ट्रक्टर है, एंड इस डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होता है। देयरफॉर यहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा देयर इज़ अ व्हीकल, एंड देन जब ये बस ऑब्जेक्ट 2 क्रिएशन पे आएगा तो इस क्लास में भी हमने इनहेरिट किया हुआ है क्लास व्हीकल को, एंड इस वजह से फिर से इसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा व्हीकल क्लास का, एंड देयरफॉर द आउटपुट will be this as a vehicle and this is a vehicle 2 times. The next type of inheritance is multi-level inheritance. Multi-level inheritance में होता है कि जैसे कि मान लो एक क्लास है तो इसका एक डिराइव क्लास होगा B एंड इस B का एक सब डिराइव क्लास होगा C।
तो यहाँ पे हम साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पे C का बेस क्लास B हो जाता है एंड B का बेस क्लास A हो जाता है। तो चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक क्लास व्हीकल है जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आउटपुट स्टेटमेंट है दिस इज अ व्हीकल, ओके। एंड देन यहाँ पे एक अनदर क्लास है फोर व्हीलर जो क्लास व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है। एंड क्लास फोर व्हीलर के अंदर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसका एक खुद का एक आउटपुट स्टेटमेंट है। एंड द नेक्स्ट एक क्लास कार है जो क्लास फोर व्हीलर को इनहेरिट किया है एंड उसका एक खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो इसका मतलब यहाँ पे साफ मल्टीपल इनहेरिटेंस शो है क्योंकि यहाँ पे क्लास व्हीकल को क्लास फोर व्हीलर इनहेरिट किया है एंड क्लास फोर व्हीलर को क्लास कार इनहेरिट किया हुआ है। तो इसीलिए ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। एंड जब हम मेन फंक्शन में कार नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं तो यहाँ पर से इसका आउटपुट हम देखेंगे कि आउटपुट होगा, सबसे पहले आउटपुट प्रिंट होगा दिस इज अ व्हीकल एंड देन आउटपुट प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विथ फोर व्हील्स आर व्हीकल्स एंड देन वहाँ पे आउटपुट प्रिंट होगा कार हैज़ फोर व्हील्स। ये ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि जैसे ही हम कार नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये इस क्लास के अंदर ये देखता है कि ये फोर व्हीलर नाम के क्लास को इनहेरिट किया हुआ है एंड देयरफॉर ये वहाँ पर से अपना कंट्रोल डायरेक्ट क्लास फोर व्हीलर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। एंड जैसे ही क्लास फोर व्हीलर में कंट्रोल आता है तो ये यहाँ पर कंपाइलर देखता है कि ये व्हीकल क्लास को इनहेरिट किया हुआ है एंड जैसे उस वजह से ये व्हीकल क्लास के अंदर जाता है एंड देन वहाँ पर से ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट होता है क्योंकि इसका कोई अनदर बेस क्लास नहीं है, इसीलिए यहीं पर से आउटपुट प्रिंट होना स्टार्ट होता है। तो इसके डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होने के वजह से यहाँ पर का आउट इज अ व्हीकल एंड देन प्रिंट होगा ऑब्जेक्ट विथ फोर व्हील्स आर व्हीकल्स एंड देन कार हैज़ फोर व्हील्स। The next type of inheritance is hybrid inheritance, and in the case of a hybrid inheritance it is the combination of both multiple inheritance and hierarchical inheritance. Therefore यहाँ पर hybrid inheritance में हम देखेंगे कि एक केस में एक बेस क्लास होगा एंड एक डिराइव क्लास होगा, ठीक है। एंड इसी एक दूसरा बेस क्लास होगा और इस दो बेस क्लास का एक अनदर डिराइव क्लास होगा, ओके। तो चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पर एक क्लास व्हीकल है जिसका एक खुद का एक कंस्ट्रक्टर है एंड उस कंस्ट्रक्टर के अंदर एक आउटपुट स्टेटमेंट है एंड देन यहाँ पर एक अनदर क्लास है फेयर जिसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर है एंड उस कंस्ट्रक्टर में एक आउटपुट स्टेटमेंट है फेयर ऑफ व्हीकल एंड देन एक क्लास कार है जो क्लास व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है, ओके। एंड यहाँ पे एक दूसरा क्लास बस है जिसमें क्लास व्हीकल भी इनहेरिटेड है एंड क्लास फेयर भी इनहेरिटेड है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक सिंपल इनहेरिटेंस हुआ है एंड देन यहाँ पे एक मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ है। तो इसीलिए हम इसे एक हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं क्योंकि ये दो इनहेरिटेंस से मिलकर बना हुआ है। एंड जब यहाँ पर हम बस ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसका आउटपुट किस ऑर्डर में प्रिंट होगा, चलो देखते हैं। जैसे ही क्लास ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट हुआ है तो ये देखेगा कि पहले पब्लिक व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है तो पब्लिक व्हीकल में जाएगा एंड उसका आउटपुट प्रिंट करेगा दिस इज अ व्हीकल एंड देन यहाँ पर इसी क्लास से क्लास फेयर भी इनहेरिटेड है, तो इस वजह से ये क्लास फेयर में आएगा एंड उसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का आउटपुट प्रिंट करेगा फेयर ऑफ अ व्हीकल, ओके। एंड देयरफॉर इसी वे में इसका आउटपुट प्रिंट होगा। The next question is write a program that uses a function template called min to determine the smaller of two arguments. Test the program using integer,
कैरेक्टर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पेयर्स। तो टेम्पलेट यूज़ करने का एक स्पेसिफिक सिंटैक्स होता है। पहले उस टेम्पलेट फंक्शन यूज़ करने के लिए हम टेम्पलेट क्लास क्रिएट करते हैं, एंड टेम्पलेट क्लास क्रिएट करने का ये एक सिंटैक्स है, टेम्पलेट एंड एरो ब्रैकेट के अंदर क्लास टी, एंड देन उस क्लास टी नाम के से हम एक फंक्शन टेम्पलेट क्रिएट करेंगे, जिस टेम्पलेट का नाम है यहाँ पे मिनिमम, एंड टी टाइप का यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट लिया हुआ है, एंड इस टेम्पलेट के अंदर हम स्मॉलर नंबर को रिटर्न कर रहे हैं। ओके, ये फंक्शन है जिससे स्मॉलर नंबर को रिटर्न कर रहे हैं। ये एक टर्नरी ऑपरेटर यहाँ पे यूज है। अगर टर्नरी ऑपरेटर नहीं समझ में आता, इसमें कंफ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में लिखो, हम इस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके, तो ये टेम्पलेट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक n1 और n2 में जो भी स्मॉलर नंबर है उस नंबर को वो रिटर्न कर रहा है। एंड देन यहाँ पर एक मेन फंक्शन है, इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक इंटीजर नाम का 2 वेरिएबल लिए हैं, फ्लोट नाम का 2 वेरिएबल लिए हैं, एंड कैर नेम का 2 वेरिएबल लिए हैं। एंड देन पहले हम 2 इंटीजर इनपुट किए, उसके बाद यहाँ पर हम मिनिमम नाम का जो एक टेम्पलेट फंक्शन था उसमें हम i1 एंड i2 पास किए, एंड उसके बाद फिर इसको हम आउटपुट डिस्प्ले करवा दिए। तो इससे क्या होगा, i1 एंड i2 यहाँ पे भले ही इंटीजर है, बट वो टेम्पलेट में जाके, क्योंकि टेम्पलेट एक ऐसा फंक्शन होता है जो किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है किसी भी डेटा टाइप के ऊपर। ओके, एंड देयरफॉर यहाँ पर इंटीजर के भी ऊपर ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एंड सिंस ये मिनिमम टेम्पलेट एक ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जिसमें से स्मॉलर नंबर को वो रिटर्न कर रहा है, देयरफॉर i1 एंड i2 में जो भी एक स्मॉलर नंबर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा इस मिनिमम के साथ। एंड देन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हम यहाँ पे इनपुट लिए हैं, एंड इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर f1 एंड f2 को भी हम मिनिमम टेम्पलेट के अंदर पास किए हैं। जैसा कि अभी हम बताए कि टेम्पलेट एक ऐसा फंक्शन है जो किसी भी डेटा टाइप के ऊपर वर्क करता है, तो यहाँ पर ये फ्लोट के ऊपर भी वर्क करेगा, एंड फिर उन दोनों f1 और f2 में से मिनिमम नंबर को वो रिटर्न करके इस यहाँ पर प्रिंट करेगा। एंड देयरफॉर इन द सेम केस ये कैरेक्टर के भी ऊपर वर्क करेगा, कैरेक्टर में मिनिमम एस्काई वैल्यू जिसका होता है वो उसको रिटर्न करके देगा, एंड फिर ये उसको प्रिंट करेगा। ओके, अगर टेम्पलेट के ऊपर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो, हम इस पर दूसरा वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है जिससे शायद फंक्शन टेम्पलेट पर कंफ्यूजन दूर हो सके, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फंक्शन टेम्पलेट्स एंड ओवरलोडिंग, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। Relationship between function templates and overloading with example are: two different functions can have the same name if their parameters are different, either because they have a different number of parameters or because any of their parameters are of a different type। मतलब ये है कि फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा केस होता है जिसमें हम 2 और अधिक फंक्शन को सेम फंक्शन नेम देते हैं, बट उसमें डिफरेंट सेट्स ऑफ पैरामीटर होता है, या तो उसमें डिफरेंट रिटर्न वैल्यू होता है। मतलब फंक्शन नेम सेम होगा, बट आइदर हम रिटर्न वैल्यू उसका चेंज करेंगे, रिटर्न टाइप, या फिर उसका पैरामीटर लिस्ट चेंज करेंगे। ओके, तो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर देखो, इंट रिटर्न टाइप है और सम एक फंक्शन नेम है, और इसमें 2 पैरामीटर है, इंट ए एंड इंट बी, और ये रिटर्न दोनों का सम को रिटर्न कर रहा है। ओके, एंड देन यहाँ पे एक अनदर सम फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप डबल है, और यहाँ पर पैरामीटर में डबल ए एंड डबल बी है। तो देखो यहाँ पर 2 फंक्शन नेम है, सम, यहाँ पर भी सम, बट दोनों का रिटर्न टाइप भी अलग है एंड पैरामीटर लिस्ट भी चेंज है, क्योंकि पहला में इंट है एंड सेकंड में डबल है। तो यहाँ पे ये फंक्शन ओवरलोडिंग होगा, और इस केस में
डबल सम के केस में ये दोनों का सम रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों का फंक्शन सेम है बट दोनों अलग अलग टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा। पहले में इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा एंड सेकेंड में डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। एंड अगर हम मेन फंक्शन में सम के अंदर 10,20 जो कि एक इंटीजर है, अगर 10,20 पास करते हैं तो वो इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा एंड वो दोनों का सम रिटर्न करके यहाँ पर प्रिंट होगा। एंड देन इन द केस ऑफ सम 1.0, 1.5 यहाँ पर ये डबल सम वाले फंक्शन को कॉल करेगा एंड डबल सम एक फंक्शन दोनों का सम करके यहाँ पर आउटपुट प्रिंट करवाएगा। तो इस केस में हम देख सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग का यूज़ हुआ है क्योंकि दो फंक्शन ऐसा है जिसका फंक्शन नेम सेम है बट रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट है। तो इस वजह से ये फंक्शन ओवरलोडिंग है। नेक्स्ट, बोथ फंक्शन ओवरलोडिंग एंड टेम्पलेट्स आर एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. Function overloading is used when multiple functions do similar operations. Templates are used when multiple functions do identical operation. जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग था जिसमें दो अलग अलग फंक्शन था बट सेम फंक्शन नेम था, बट वहाँ पर ऑपरेशन दोनों का सेम था। दोनों का ऑपरेशन तो दोनों को सम करना ही था, दो अलग अलग नंबर का सम करना है, बट यहाँ पर एक में इंटीजर रिटर्न कर रहा है, एक में डबल रिटर्न कर रहा है। तो इस केस में हम यहाँ पे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं क्योंकि टेम्पलेट एक ऐसा फंक्शन है जो आइडेंटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है किसी भी डेटा टाइप के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर एक क्लास टी नाम का हम एक टेम्पलेट क्लास क्रिएट किए एंड सम नाम का एक टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट किए जिसमें दो आर्गुमेंट हमने लिया है एंड देन दोनों का सम रिटर्न कर रहे हैं इस टेम्पलेट के पास से। एंड अगर हम मेन फंक्शन में दो इंटीजर वैल्यू को इस टेम्पलेट के ऊपर पास करते हैं तो दो इंटीजर वैल्यू का वो सम रिटर्न करके देगा। एंड अगर हम डबल वैल्यू का भी कुछ वैल्यू पास करते हैं इस टेम्पलेट के ऊपर तो उस डबल वैल्यू का भी ये सम रिटर्न करके देता है। तो इसका मतलब टेम्पलेट किसी भी डेटा टाइप के ऊपर परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पर इजीली कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा अगर ये एग्जांपल तुम ध्यान से समझो तो। अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। The next question is, what are the advantages of using exception handling mechanism in a program? Explain with an example. Answer: advantages of using exception handling mechanism in a program, since exceptions are runtime anomalies or abnormal conditions that a program encounters during its execution. Some keywords used in the exception handling are try, represents a block of code that can throw an exception. Catch represent a block of code that is executed when a particular exception is thrown. Throw used to throw an exception, always also used to list the exception that a function throws but doesn't handle itself. इसका मतलब ये है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग, लेट अस सपोज कि प्रोग्राम कंपाइल करते टाइम अचानक कहीं पर भी एरर हो जाता है, जो कि प्रोग्राम में कहीं गलती नहीं होता बट एबनॉर्मल एक्टिविटीज़, एबनॉर्मल कंडीशन और रन टाइम एनोमलीज़ के वजह से वहाँ पर एक एक्सेप्शन क्रिएट हो जाता है। तो वो आउटपुट में कुछ अलग ही वे में आउटपुट डिस्प्ले करता है और अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहें तो उसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के मदद से कर सकते हैं। तो कुछ कीवर्ड्स है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। ट्राई में हमेशा हम लोग उस कोड को लिखते हैं, उस ब्लॉक ऑफ कोड को लिखते हैं जिसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी लगता है कि इस कोड में एक्सेप्शन हो सकता है, एक्सेप्शन एरर जनरेट हो सकता है, तो उसको हम ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं। कैच ब्लॉक में वो ब्लॉक ऑफ कोड रहता है जो कि प्रिंट करना चाहते हैं जब कोई एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, मान लो ट्राई ब्लॉक में जो हम लोग कोड लिखे थे उसमें एक्सेप्शन थ्रो हो गया, तो वो कैच ब्लॉक उसको कैच करता है एंड देन पर्टिकुलर सेगमेंट को एग्जीक्यूट करता है।
थ्रो कीवर्ड हमेशा एक्सेप्शन थ्रो करता है और ये एक लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है किसी भी फंक्शन और एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए. The next advantages of exception handling are separation of error handling code from normal code. Functions, methods can handle any exception they choose. Both basic types and object can be thrown as exception. We can create a hierarchy of exception object, group exceptions in namespaces or classes, categorize them according to types. तो चलो इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं. यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल x इज इक्वल्स टू -1 है एंड देन वहाँ पे एक आउटपुट प्रिंट है बिफोर ट्राई एंड देन यहाँ पर हम एक ट्राई ब्लॉक रखे हैं जिसमें हम कुछ कोड रखे हैं जिसमें से एक पॉसिबिलिटी है कि एक्सेप्शन थ्रो हो सकता है एंड देन यहाँ पर एक कंडीशन डाले हैं जिसमें अगर x लेस देन 0 है तो वो x को थ्रो करेगा और थ्रो करके वो कैच ब्लॉक में डायरेक्ट सेंड करेगा. ओके अगर एक्सेप्शन थ्रो हुआ तो एंड वो वहाँ पर से डायरेक्ट फंक्शन कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाता है. जैसे कि अगर मान लो x का वैल्यू लेस देन 0 हुआ तो यहाँ पे थ्रो x है. इस थ्रो x के वजह से ये होगा कि कैच उसको कैच करेगा एंड देन यहाँ पर प्रिंट करेगा एक्सेप्शन कॉट एंड देन आफ्टर दैट आउटपुट प्रिंट होगा आफ्टर कैच विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके एंड इन दिस वे यहाँ पर कंट्रोल वर्क करता है और ये सेगमेंट डिस्कशन ख़त्म होता है. थैंक यू.